Hey guys, Assalamu alaikum. I hope that you are doing super fine at your homes. So, what is me? This is Nishan, and once again, welcome back to my channel, Fun with EK. So, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि क्या आपको पता है एस्ट्रोनॉमी होता क्या है? नहीं पता तो आज मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो में हम एक सरप्राइज बताएंगे। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी और सरप्राइज आपको एंड में पता लगेगा। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। सो एस्ट्रोनॉमी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब एस्ट्रोनॉमी बेसिकली एक स्टडी को कहते हैं विच इज ऑफ एवरी सिंगल थिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, that includes the object that can be seen with our naked eye like sun, the moon, the planets and the stars. अब उस स्टडी में क्या इंक्लूड करता है? This that studies consist of the things in the universe and the sky which can easily be seen with our naked eye, which is the sun, which is the moon, planets, and the stars too. So we can easily see the sun, moon, and planets and stars too. It also includes the object which can only be seen with the telescope or other instrument like faraway galaxies and particles. So whereas astronomy study also, it is also consist of those things which cannot be seen with our naked eye. They can only be seen with a telescope, either a telescope or other instruments like the far away galaxy and the tiny tiny particles. So अब एस्ट्रोनॉमी एक स्टडी है जिसमें वो चीजें हम लोग जिसमें वो चीजें इंक्लूड होती हैं which can easily be seen with our naked eye like sun, the moon, the planets and the star, whereas it also includes the things which cannot be seen with our naked eye, such as the faraway galaxies and the tiny particles too. Now the next is the sun. Sun is the star in the center of the solar system. The sun is like other stars, is a ball of gas. The sun star is the star which Earth orbits. अब सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि सन एक ऐसा स्टार है जो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है. The sun is like other star is a ball of gas. मतलब वो भी बाकी सारे स्टार्स की तरह है, एक बॉल का गैस की एक बॉल है. It is a star which Earth orbits. अब ये वो स्टार है जिसके अराउंड अर्थ अपना ऑर्बिट कंप्लीट करती है. अब अभी जो स्लाइड्स जो करंटली मैं दिखा रही हूँ, अब इन स्लाइड्स में पिक्चर शो करूंगी. तो पिक्चर्स आप लोग प्लीज बहुत गौर से देखिएगा एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. सो यू कैन सी फ्रॉम दिस सन, ये पिक्चर स्पेस से ली गई है. यू कैन सी इट्स अ बॉल ऑफ गैस whereas it's very 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 hard and आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट इस पे नहीं जा पाया. A moon. Moon is a natural satellite. You can see this picture. It's a picture of the moon taken from the space. So it is often called as the natural satellite. It is in the solar system. Moon doesn't have its actual light. Moon की अपनी actual light नहीं होती. It is actually a sunlight. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अब whenever the night started, तो फिर क्या होता है कि सन के आगे मून आ जाते हैं. तो सनलाइट जो है kind of moon को फाड़ती हुई आगे निकल जाती है. So whatever we see the light from the moon, it's actually not the moonlight, it's the sunlight. Moon is also the part of solar system that can be seen at night. Moon भी एक solar system का part होता है जिसको हम सिर्फ रात में देखते हैं. ठीक है. अब next है Earth. This topic is very interesting. Listen me very carefully. It is a planet in solar system which we live on. You can see the picture of Earth from this space. All the pictures are taken from this space actually, which I am showing you right now recently. So first of all, you can see this picture of the Earth, and Earth is basically also like the other planets, but there's a little difference. अर्थ में वो सारा सामान होता है जो एक पर्सन को जीने के लिए चाहिए होता है. लाइक द ग्रेविटी, वी नीड द ग्रेविटी. लाइक द एयर, the controlled temperature, controlled atmosphere, and oxygen is very important to breathe. The water to drink, the food to eat, a fertile land. अर्थ में सारी चीजें हैं जो एक पर्सन को चाहिए होती हैं. अब ये वाला टॉपिक बहुत गौर से सुनने का.
Is the earth round? अब ये क्या है? Yes, the earth is round. Actually, it's sphere shape. Around a century ago, people believed that earth isn't round, but actually, it is round in shape. Okay. The earth is round. Actually, it isn't sphere shape. Sphere is also a shape you can see. This type of earth is it. It is. Around a century ago, many days ago, the people used to believe that the earth is not round, but actually it is in round shape. ओके बहुत सालों पहले लोग ये बिलीव करते थे कि अर्थ राउंड नहीं होती बट एक्चुअली इट इज राउंड. अब एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट जो अर्थ को देखते हैं उन्होंने क्या कहा कि अर्थ तो राउंड होती है भाई. एंड यस वी आल्सो यूज्ड टू बिलीव दैट अर्थ इज राउंड. यू कैन सी द पिक्चर फ्रॉम द स्पेस. अब एक एग्जांपल लीजिए. Now you can see the picture of watermelon and ants on it. Can you understand like what is it? मतलब इसका क्या मतलब है? Like relate it is how it is related to astronomy. You guys know? Okay, if no, so I'm gonna tell you. अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ अभी जल्दी से. तो अब ये पिक्चर है वाटरमेलन की, अब आंट्स की. अब आंट्स को हम ह्यूमन बींग्स समझ लेते हैं. लेट्स स्टार्ट एट ह्यूमन बींग्स एंड वाटरमेलन को हम एज अ अर्थ समझ लेते हैं. अब ये आंट्स जो हैं अब ये वाटरमेलन पर चल रही है. अकॉर्डिंग टू द आंट्स द वाटरमेलन इज स्ट्रेट. ठीक है, स्ट्रेट है. बट अगर हम देखें कि हम अगर वाटरमेलन को देखें तो क्या होगा? एग्जैक्टली इट इज राउंड एंड एक्चुअली स्क्वेयर इन शेप. हम सॉरी पता हमें तो ये वाटरमेलन जो है बिल्कुल सर्कल दिखेगा बट अकॉर्डिंग टू द आंट्स एज दे आर वेरी टाइनी टू सी. सो अब आंट्स बहुत टाइनी होते तो उनके वाटरमेलन स्ट्रेट दिखेगा बट हमें सर्कल दिखता है. वैसे ही जैसा कि अभी हम ना स्कूल की एग्जांपल लें तो हम स्कूल जाएंगे, स्कूल भी एक फ्लैट होगा मतलब स्क्वायर होगा. इट इज नॉट इन सर्कल शेप. तो अभी भी कुछ लोग स्टिल बिलीव करते हैं दैट द अर्थ इज स्क्वायर. बट दिस एग्जांपल के थ्रू via this example everybody can understand easily that अर्थ इज एक्चुअली नॉट राउंड इन शेप. अब देखें अगर हम ही अर्थ पर चलेंगे हमें अर्थ फ्लैट लगेगी. यानी कि अगर आंट्स वाटरमेलन पर चलेंगे तो वाटरमेलन फ्लैट लगेगा आंट्स को. बट whenever we see like अभी हम एस्ट्रोनॉट हैं for the ants in the watermelon तो एस्ट्रोनॉट्स को क्या लगेगा? Exactly correct, the earth is round in shape. तो वैसे ही हम जब अर्थ पर चलते हैं तो हमें क्या लगता है? अर्थ राउंड है. बट जब एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं तो उनको सर्कल दिखती है, अर्थ स्फीयर. यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन. स्टार. अब स्टार्स तो भाई बहुत इजी है. अब इसमें मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख दी है और ये पिक्चर भी बहुत बहुत प्यारी है. यू कैन सी दिस पिक्चर फ्रॉम हियर, कैन सी. तो ये पिक्चर भी बहुत प्यारी है. एंड अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. स्टार्स आपको पता है कि डिफरेंट स्टार्स होते हैं और स्टार्स एंड द स्पेस. और स्टार्स को कोई इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज एवरीबॉडी नो व्हाट आर स्टार्स एक्चुअली. तो खैर ये वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं. A star is an astronomical object consisting of a luminous spheroid of plasma held together by its own gravity. ठीक है, मतलब एक स्टार जो है ना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है कंसिस्टिंग ऑफ लुमिनस स्फेरॉइड ऑफ प्लाज्मा. किसके होते हैं? प्लाज्मा के. हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी. स्टार्स की ओन ग्रेविटी होती है जिससे वो हेल्ड होते हैं मतलब फॉर्म होते हैं, बनते हैं. फॉर मोस्ट ऑफ इट्स एक्टिव लाइफ a star shines due to the thermal fusion of hydrogen into the helium in its core, releasing energy that travels the star's interior and radiates out in space. अब इसका क्या मतलब है? For most active life मतलब active life के लिए stars shine किससे होते हैं? Thermal fusion से. अब ये किसका होता है? हाइड्रोजन का into the helium in its core के अंदर, releasing energy that traverse the star's interior. कहाँ पे करता है? इंटीरियर में. आफ्टर दैट इट रेडिएट्स इनटू द आउटर स्पेस. इंटीरियर मतलब स्टार के अंदर जो कुछ होता है. एक्सटीरियर आउटर स्पेस मतलब जो स्टार के बाहर होता है, जो उसकी सराउंडिंग्स में होता है. ठीक है, अब हमने स्टार को पढ़ लिया, मून को पढ़ लिया, सन को पढ़ लिया. अब हम पढ़ते हैं अबाउट द एस्ट्रोनॉट्स. एस्ट्रोनॉट्स
A person who is trained to travel in this space, anyone can become an astronaut. So astronauts are basically the people that are trained to travel in this space. Me, you, your brother, your sister, your friends, my friends, anyone can become an astronaut. ऑलराइट, आप भी बन सकते हैं एस्ट्रोनॉट, मैं भी बन सकती हूँ, कोई भी बन सकता है. बचपन से हमने एस्ट्रोनॉट के बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, बट हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा. तो आज हम एस्ट्रोनॉट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. अब स्टार्टिंग के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज एन एस्ट्रोनॉट. बेसिकली एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु इज बेसिकली ट्रेन टू ट्रैवल इन द स्पेस एंड एनीवन कैन इजीली बिकम एन एस्ट्रोनॉट. अब चलें आगे बढ़ते हैं. अब सिर्फ एस्ट्रोनॉट के बारे में पढ़ेंगे. ओ या वेट, सो सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली इट्स इंटरनेट इशू. सो हाँ, ये वाली पिक्चर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं. तो ये है एक एस्ट्रोनॉट, ठीक है. अब ये ऐसा सूट होता है एस्ट्रोनॉट का. ऑलराइट, हाउ वी कैन गो इनटू दिस स्पेस? कैन वी गो इन स्पेस बाय hot air balloon, airplane and helicopter? What do you think? I think yeah. No, we cannot go in the space via spacecraft. We can only go in the space via spacecraft. मतलब हम सिर्फ spacecraft के थ्रू ही जा सकते हैं स्पेस में. अब हम इनके थ्रू क्यों नहीं जा सकते? आई एम 100% श्योर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा. Oh my god, wait, let me set my mic. Wait a second. So guys, that now I hope that आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियरली आ रही होगी now. तो हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हम हॉट एयर बलून या एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर के अंदर स्पेस में क्यों नहीं जा सकते. तो इसके लिए हमें लिमिट पढ़ना पड़ेगी. व्हाट इज अ लिमिट? अब लिमिट एक चीज होती है कि बस इतना ही जा सकता है. अब हॉट एयर बलून की लिमिट है. हॉट एयर बलून की एक लिमिट होती है एंड इट इज जस्ट कंट्रोल बाय द एयर. अब एयर के थ्रू कंट्रोल हुआ होता है वो हॉट एयर बलून. और हॉट एयर बलून की एक लिमिट होती है, लाइक इट कैन ओनली गो टू द फर्स्ट स्काई, द सेकंड स्काई, द सेवंथ स्काई. और एक लिमिट होती है कि इस स्काई तक जा सकता है. एयरप्लेन की भी वैसे एक लिमिट होती है कि भाई ये सिर्फ इतने ही उस तक जा सकता है, इतनी ही लिमिट तक जा सकता है. वेराज हेलीकॉप्टर की भी एक लिमिट होती है कि हेलीकॉप्टर बस इतनी लिमिट तक ही जा सकता है. ठीक है, लेकिन स्पेस क्राफ्ट की स्पेस तक की लिमिट होती है. मतलब फ्रॉम द लैंड इट कैन इजीली गो टू स्पेस. ठीक है. अब गाइस, अब मैं आपको एक और फन फैक्ट बताती हूँ. जैसे कि हम एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़े थे, तो एक और चीज आपको बताती हूँ. अब गाइस, आपने एस्ट्रोनॉट्स की बेसिक डेफिनेशन तो पढ़ ली. अब मैं आपको बताती हूँ एस्ट्रोनॉट्स का सूट ऐसा क्यों होता है. वो लोग नॉर्मल पैंट शर्ट या शलवार कमीज क्यों नहीं पहन लेते भाई? सो नाउ लेट मी नो, लेट मी टेल यू. एस्ट्रोनॉट्स का एक स्पेशल सूट डिजाइन होता है which provide them water, air, oxygen to breathe, ठीक है, and the food to eat. अब ये जो हमारा एक स्पेशल एस्ट्रोनॉट्स के लिए सूट होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को पहनाया जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि स्पेस में तो भाई वाटर नहीं होता. तो वो वाटर प्रोवाइड करता है सूट. स्पेस सूट जो होता है उसको स्पेस सूट कहते हैं. स्पेस सूट वाटर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन तो ब्रीथ प्रोवाइड करता है. सेकेंडली ये मतलब जो डिफरेंट गैसेस होती है ना स्पेस में विच आर हार्मफुल फॉर द पीपल, तो उससे बचाता है और अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है. ठीक है, you can see this spacesuit is like this. Okay, अब जो भी एस्ट्रोनॉट बनेगा तो उसका स्पेस सूट पड़ जाएगा. So guys, now that's all for today's video. I hope that आपको अच्छे से हर चीज समझ आ गई होगी और I give my level best to explain you guys. अब जल्दी से एक मैं क्विक रिव्यू दे देती हूँ. क्विक रिव्यू मैंने अपनी पिछली ह्यूमन बॉडी वाली वीडियो में भी कहा था, बिकॉज क्विक रिव्यू से क्या होता है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. एस्ट्रोनॉमी क्या था? Yes, exactly. It's a study about the things in the space which can easily be seen with our naked eye, whereas it also includes the thing which cannot be seen with our naked eye, like sun, the moon, the planets, the stars, and the fire big galaxies and the tiny particles too. अब आगे चलते हैं भाई. सन की इमेज देख लें. अब मैं सिर्फ इमेजेस आपको क्लियर कर रही हूँ. अगर अभी भी आपको वीडियो ना क्लियर हुई हो तो बार बार ये वीडियो देखें, अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सन की इमेज आप लोग देख लें, बहुत हॉट है. इससे पास से आग, समझे, आग का गोला है. और हाँ, एक फन फैक्ट बताती हूँ. सन पर जितनी 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 ज्यादा पानी डाला जाएगा ना, वो उतना ही ज्यादा आग उसकी बढ़ेगी. दिस द मून. मून की अपनी नेचुरल कोई लाइट नहीं होती है, जबकि वो सन के आगे आ जाता है. जैसे ही रात होना शुरू होती है तो सन की जो लाइट होती है, सनलाइट, उसको फाड़ती हुई निकल जाती है. whereas मून डजंट हैव इट्स एक्चुअल लाइट. अब ये अर्थ
You can see this earth. Watermelon हम लोग हैं and ants. Sorry, watermelon earth है, whereas the ant is me or you or us too. ठीक है. अब हम जब चलेंगे भाई अर्थ पर, हमें लगेगा कि अर्थ जो है क्या कहते हैं स्क्वायर शेप की है, बट एस्ट्रोनॉट्स को क्या लगता है सर्कल है. एग्जैक्टली करेक्ट. अब आगे आगे पढ़ लेते हैं भाई. स्टार्स का मैंने आपको पढ़ा दिया था, एक और दफा डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. The stars is an astronomical object consisting of a luminous spheroid of plasma, held together by its own gravity for most of its actual life. A star shines due to its thermonuclear fusion of hydrogen into the helium in its core, releasing energy that traverses the heart's interior and then radiates out in the outer space. Now let's move on. You can see this image. Now let's move on. So astronaut is a person who is trying to travel into space, and anyone can become an astronaut. Spacesuit हमें air to breathe, oxygen to breathe, food intake, and water to take देता. How we can go to space? We can only go through a spacecraft. ओके जी, तो अब बारी आती है उस सरप्राइज की जिसकी मैं शुरुआत करी थी. तो सरप्राइज असल में है एक सरप्राइज. चलो बताती हूँ. तो गाइस वो सरप्राइज ये है कि आप लोग को आई थिंक सो हमारा फेस रिवील चाहिए होगा. तो फेस रिवील अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें 1K की फैमिली कंप्लीट करानी पड़ेगी, फिर हम अपना फेस रिवील कर देंगे. तो जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराइए और हमारा फेस रिवील देखने को मिलेगा आपको. So guys, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Love you all. Bye bye. और फीडबैक जरूर देना मेरे जीमेल एड्रेस पर which is fanvidiki0@gmail.com. Bye bye.